Good morning students, welcome again here in this video tutorial. As we all of you know that your unit 2nd examination will be started from 3rd of December. When your unit 2nd examination will be started? Yes, it will be started from 3rd of December. So that's why from today now I am going to start your revision. Okay beta? So today we will revise our chapter number 4, Growing Up as Boys and Girls. Which chapter? Growing Up as Boys and Girls from your civics. But before going to start the chapter, I would like to tell you some COVID-19 appropriate behavior. Number 1, wear mask properly. Stay at least 6 feet from others. How much feet from others you have to stay at least? Yes, at least 6 feet. Okay. Wash your hand frequently, always with soap and water for at least 20 seconds. Yes, you have to wash your hand very frequently, at least 20 seconds, always with soap and water. Remember, do not touch your eyes, face and nose, and do not share your food or drink with others. Now start our chapter with topic growing up in Samoa in the 1920s. When? Yes, 1920s की हम बात कर रहे हैं. So the Samoan Islands are part of a group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. So here we are talking about one island. Yes, which island? Samoan Island are a part of large group of small island. वो part है large group of small island का where in the southern part of the Pacific Ocean. In the 1920s, just look at here again, we are talking about 1920s children. So according to research report on Seven Society, which report? According to research report on Seven Society, children did not go to school. Yes, that time children did not go to school in 1920s. Where? In Samoan Island. They learn many things such as how to take care of children or do household work. उन्हें कैसी चीज़ें सीखनी पड़ती थी उस टाइम, such as how to take care of children. उनके जो small brother and sister हैं उनकी कैसे take care की जाए. Household work, yes, अपने से बड़े जो उनके बड़े भाई बहन थे उनसे वो सीखते थे कैसे घर का काम करें और कैसे अपने छोटे भाई बहन की केयर करें. एंड फ्रॉम एडल्ट, यू नो बेटा, fishing. Yes, fishing was a very important activity on the island. Obviously बात है कि island में रहते थे, वहाँ की important activity क्या थी? Fishing. Young people therefore learn to undertake long fishing expeditions, but they learn these things at different points in देयर चाइल्डहुड. उन्हें चाइल्डहुड से ही ऐसे सीखना पड़ता था कि कैसे फिशिंग की जाए या कैसे आगे के वर्क किया जाए. एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, देयर मदर और ओल्डर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम. नहीं देखा जाता था जैसे ही बेबी वॉक करने लगता था. दैट टाइम ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 years old, व्हेन जब ओल्डर चिल्ड्रन हो जाए 5 years old, टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी एट द एज ऑफ 5 years. देन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स. चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, बोथ हो, उन्हें अपने यंगर सिबलिंग यानी कि अपने छोटे भाई बहन की टेक केयर करनी ही पड़ती थी. बट बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boy in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts at the age of 9. जैसे ही बॉय 9 years के हो जाते थे उन्हें क्या करने पड़ते थे? उन्हें बॉयज़ को ज्वाइन करते थे आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग एंड planting. Okay, girls had to continue looking after small children or do errands for adults till they were teenager. और गर्ल्स को क्या करना पड़ता था? उन्हें अपनी यंगर ब्रदर एंड सिस्टर की टेक केयर करनी पड़ती थी और घर के सारे वर्क करने पड़ते थे. आफ्टर द एज ऑफ 14, when
after the age of 14, which age of 14 or so, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave basket. girls क्या करती थी, फिशिंग ट्रिप्स पे जा सकती थी, वर्क करती थी प्लांटेशन के लिए, और बास्केट वगैरह कैसी बनाई जाए वो भी सीखती थी. एंड यू नो टीनेजर गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग इंडिपेंडेंटली. दे वीव बास्केट एंड cooked food also. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. So student got it? समवन आइलैंड की जो हमने बात की है, वहाँ जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स में किस तरह डिस्क्रिमिनेशन होता था, किस तरह उन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता था, किस तरह उनकी वर्क्स थी, उनकी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ थी. नाउ लुक एट हियर, ग्रोइंग अप मेल इन द मध्य प्रदेश इन द 1960s. नाउ लेट्स कम हियर, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज case study of Madhya Pradesh, and we are talking about growing up male in the Madhya Pradesh. जो male थे where Madhya Pradesh and when in 1960s. The following is adaptation from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s. एक small town की हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो 1960s थी. You know, from class 6 onwards, from class 6 onward, boys and girls went to separate schools. Yes, 6th में जैसे ही बच्चे आते थे उनके बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेपरेट स्कूल में भेजा जाता था. द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल. जो गर्ल्स का स्कूल था वो एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ दोनों में काफ़ी डिफरेंस था. दे हैड अ सेंट्रल कंट्री यार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्युलरिज्म एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. एक बिल्कुल कंट्री यार्ड एंड सेफ्टी, जो बाहर के वर्ड से गर्ल्स को जो है सेफ्टी प्रोवाइड की जाती थी. द बॉयज स्कूल हैड प्ले ग्राउंड अटैच टू द स्कूल फॉर प्लेइंग. बॉयज़ के पास क्या होता था, एक काफ़ी बड़ा जो होता था प्ले ग्राउंड होता था. वो किससे अटैच होता था, बिग स्पेस का एक प्ले ग्राउंड टू द स्कूल. Every evening, once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowd the narrow street. As these girls walk on the street, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around, idling to play, to try out tricks with their bicycles. And you know what? For the girls, the street was simply a place to get straight home. उनकी जो स्ट्रीट कैसी थी, सीधे घर जाओ अपने. फॉर बॉयज़ एक अच्छी जगह जो वहाँ वो स्ट्रीट वो यूज़ करें, स्टैंड हो सके, वहाँ खड़े हो सके, प्लेस और ट्रिक्स कर सके, खेल सके अपनी बाईसाइकिल के साथ. बट फॉर गर्ल्स सीधे अपनी गो टू होम. द गर्ल ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स. गर्ल्स कैसे जाती थी, ऑलवेज ग्रुप्स में जाती थी. पर हैव्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक, बट डरी डरी भी रहती थी. So after reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. As you can, I have given two examples in front of you. So हमें क्या रियलाइज़ हुआ है, काफ़ी डिफरेंट वेज हैं ग्रोइंग अप होने के लिए. जैसे हमने सैमन आइलैंड में देखा बच्चे अलग तरीके से ग्रो हुए. हमने बात करी मध्य प्रदेश के मेल्स की एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स ऑल्सो मैन उस टाइम, तो वो अलग तरीके से मेल एंड फीमेल दोनों में काफ़ी अलग डिस्क्रिमिनेशन हुआ. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from us. कभी कभी अगर आप just go to your grandfather, your grandmother, आप अपने grandfather के पास बैठिए, अपनी grandmothers के पास बैठिए, आपको पता चले, उनको पता चलेगा आपको कि उनका चाइल्डहुड कैसा था और हमारा चाइल्डहुड कैसा है. We also realize that society make clear distinctions between boys and girls. This begins from a very young. Then boys are usually given car to play with the girl and girls doll. Boys को क्या दिया जाता है खेलने के लिए बचपन से ही, कार, and girls doll. Both toys can be a lot of fun to play. दोनों अपने टॉयज के साथ खुश है. Why girls then given dolls and boys car? क्यों? Why? What's the reason कि बॉयज़ को कार दी जाती है, गर्ल्स को डॉल?
Toy become a way of telling children that they will have different future when they become men and women. फॉर दिस हम क्या कर रहे हैं, अब बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं कि कैसे उनके फ्यूचर हैं और कैसे वो दोनों डिफरेंट है. इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड in the smallest and most average things. How girl must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और बॉयज़ नीड टू बी टफ. क्यों हमें बचपन से सिखा दिया जाता है कि गर्ल्स को सॉफ्टली टॉक किया जाएगा, बॉयज़ टफ भी हो सकते हैं. ऑल दीज आर वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव specific roles to play when they grew up to be men and women. Later in life, this affects the subjects we can study or the careers we can choose. So, in the most societies including our own, अगर हम बात करें इवन अपनी ही सोसाइटी की, the role men and women play or the work they do are not valued. आज के टाइम पे भी बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम पे भी काफ़ी जगह एरियाज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि वुमेन को जो है उनके वर्क को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू मैन वर्क. वाई? लुक अस at how this different exist in the different way. Yes, work done by men and women. क्यों दोनों के वे, क्यों दोनों की बचपन से ही, दोनों को चाइल्डहुड से ही बता दिया जाता है कि दैट यू आर मैन, सॉरी दैट यू आर बॉय, देन यू आर गर्ल. क्यों बचपन से ही ये चीज़ सिखा दी जाती है. Student, now let's come here. Our next topic is valuing housework. Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. This feeling is not unique to their families. Across the world, the main responsibility for housework are caregiving tasks like looking after the family, especially children, the elderly, and sick members live with the women. सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन फैमिली हियर. हरमीत की फैमिली की बात हो रही है. सो वहाँ जसप्रीत है, वो घर का काम करती है, उसको यही मतलब यही टेक केयर करना, सारी क्लीनिंग करना, हाउस वर्क करना इंक्लूडिंग क्लीनिंग एंड स्वीपिंग एक्सेट्रा, केयर करना, गिविंग जस्ट लाइक लुकिंग फॉर फैमिली की केयर करना, चिल्ड्रन की केयर करना, सिक पीपल इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग इमोशनल. बट नाउ सोसाइटी डी वैल्यूड दिस वर्क. आफ्टर और लास्ट में हमारा क्या होता है कि सोसाइटी एक लेडी की ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका सारा घर का वर्क है कि वो क्लीनिंग कर रही हैं, स्वीपिंग कर रही हैं, घर के सारे वर्क कर रही हैं, केयर कर रही हैं अदर फैमिली मेम्बर्स के, चिल्ड्रन के, सिक पीपल के, उनके इमोशंस हैं. बट तब भी हमारी जो सोसाइटी है वो क्या कर देती है, डी वैल्यूड दिस वर्क. वाई? Because it is also assumed that this is something that comes naturally to women, कि women में ये बचपन से ही सिखाया हुआ है, women में ये naturally है, और it therefore does not have to be paid for, या women को उनके लिए कोई पे नहीं किया जाता. So that's why and society devalued this work. So in this topic we will learn about lives of the domestic workers. Student, you know what? Many homes, particularly in towns and cities, employ domestic वर्कर्स. आपके डोमेस्टिक वर्कर्स रखे जाते हैं हाउस होल्ड वर्क की हेल्प के लिए, इवन इन टाउन्स ऑल्सो, इवन इन सिटीज ऑल्सो. Domestic workers do household works in the houses. They do a lot of work, sweeping, yes, cleaning, washing clothes and dishes, cooking, looking after young children, all the elderly. वो घर का सारा काम करते हैं, स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, डिशेस, कुकिंग, एंड यू नो यंग चिल्ड्रन और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, एल्डरली, उनका भी ध्यान रखते हैं. एंड यू नो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होते हैं आपके, वुमेन होते हैं. Sometimes even young boys or girls are employed to do this work. Many houses में पता है क्या होता है कि sometimes होता है कि young girls और boys को भी work के लिए रख लिया जाता है. Their working hours too long. उनके working hours जो होते हैं बहुत long होते हैं. Even all the household works वो करते हैं. They are not treated well. उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता. And they are paid very less salaries. उनको बहुत कम salaries दी जाती है.
and wages are low. Yes, as domestic worker does not have much value. उनकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा घर में, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता जिस घर में वो वर्क करते हैं. A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night. बहुत मॉर्निंग, आप सोच लीजिए, आप तो 5 o'clock, मोस्टली बहुत से बच्चे सो के भी नहीं उठते हैं, बट वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उन्हें एट अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है और लेट नाइट इवन कभी कभी उन्हें 12 बज जाते हैं, तब तक उन्हें वर्क करना पड़ता है. एंड डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट. और उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती बेटा. डोमेस्टिक वर्कर्स यस डज नॉट हैव मच वैल्यू, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती. सो देयर जॉब इज़ नॉट रिस्पेक्टेड बाय अदर. एंड यू नो वट बेटा, उनसे कभी कभी तो बहुत हैवी फिजिकल वर्क भी किया कराया जाता है. जस्ट लाइक अ नंबर ऑफ टास्क दिए जाते हैं उन्हें जिसमें काफ़ी फिजिकल वर्क भी होता है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल हैव टू फैच वाटर. आपने देखा है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, वुमेन क्या करती है, फैच वाटर करने जाती है. यस, इन रूरल एरियाज women and girls carry heavy head loads of firewood, and then tasks like washing clothes, cleaning, sweeping, and picking up many loads required bending, lifting, and carrying. Many like cooking बहुत करती हैं वो, involve standing, बहुत घंटों तक वो खड़ी भी रहती है, involve standing for long hours in front of hot stoves. The work women do is strenuous and physically demanding, words that we normally associate with men. वुमेन को इतना वर्क करना पड़ता है कि अगर वुमेन एक हाउस होल्ड वर्क कर रही है, चाहे वो एज अ डोमेस्टिक वर्कर कर रही है, तो वो वहाँ जाके तो वर्क करके आती ही आती है. बट आपने देखा है रूरल और अर्बन एरियाज़ में भी आपने देखा होगा कि अगर एक वुमेन अपने घर का भी वर्क कर रही है तो उसे वहाँ भी काफ़ी फिजिकल वर्क करना पड़ता है. इवन आपने देखा होगा कभी जो गांव की लेडीज़ होती हैं, जो आपकी मतलब विलेज की लेडीज़ होती है, समटाइम्स तो वो वाटर ब्रिंग करके लाती है. कितने हैवी हैवी उनके पास काफ़ी वो होते हैं, मटका, यू कैन से दैट, कि अपने सर पे रखना. आपने मोस्टली देखा होगा बहुत दूर चल के जाती है, वहाँ से पानी लेके आती है, वाटर की इवन वो फैच भी करती हैं. एंड देन आफ्टर दिस लकड़ियाँ रख के फायरवुड लेके आती हैं. फायरवुड जो होती हैं अपने सर पे रख के, आपने देखा होगा, तब वो स्टोव्स, हॉट स्टोव्स के सामने आवर्स खड़ी रहती हैं फ्रंट ऑफ, क्योंकि वो बहुत स्लो चलता है, तो उसको खाना बनाना, फिर घर का सारा काम करना, कितने वर्क हो जाते हैं एक वुमेन के लिए अपने घर में करने के लिए. एंड another aspect of housework and caregiving that we do not recognize in that it is very time consuming. काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बेटा. आपने अपनी मदर को देखा होगा, एट अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाती है. मदर को देखा है, हैव यू सीन, पूरे घर का ब्रेकफास्ट करना, पूरे घर की साफ़ सफाई, स्वीपिंग, क्लीनिंग, सब चीज़ आपकी मदर अकेली करती है. आपको स्कूल जाना होता है, आपका लंच बॉक्स, आपके फादर जॉब पे जाते हैं, उनका लंच बॉक्स, घर में ग्रैंड फादर होते हैं, घर में ग्रैंड मदर होती है, उनकी केयर करना, होल डे एक वुमेन वर्क में लगी रहती है. सो in fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, अगर हम बात करें, एक वुमेन हाउस वर्क भी कर रही है, उसके साथ वुमेन आउटसाइड भी करती है, घर के बाहर भी काम करती है. वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मेन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर. आपने देखा है कि मोस्टली वुमेन जो है आज के टाइम पे वर्किंग भी है, अपने हाउस होल्ड वर्क भी वो पूरे करती हैं वुमेन, आपकी भी पूरी केयर करती है, घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पूरी केयर करती है, एंड साथ साथ वो बाहर जॉब भी करती है. सो उनके लिए सोचिए, जस्ट थिंक बेटा, डबल वर्क हो गया, इवन हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो एंड इवन आउटसाइड द होम ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट, जस्ट लुक एट हियर. यस, study done by Central Statistical Organization in 1998 and 1999. So ये आपका Central Statistical Organization का एक डाटा है. So स्पेशल स्टडी डन हुई है ये when 1998-99.
compared to women paid and women unpaid, then men paid and men unpaid. So अगर हम हरियाणा में बात करें तो just look at here, women paid work per week, वीक की बात हो रही है यहाँ 23 एंड तमिलनाडु 19, एंड वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक, हाउस में कितना अनपेड, उन्हें कुछ पे नहीं होता 30 to 35. मेन में देखिए वर्क जो करते हैं वो पर वीक 38 to 40, एंड अनपेड हाउस में तो मोस्टली मेन कुछ वर्क करते ही नहीं है. मोस्टली वर्क तो आपने देखा है कि घर में आपकी मदर ही करती है. आपने फादर को वर्क करके देखा है? थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, वो उनके ऊपर डिजर्व करता है कि वो किस तरह हेल्प करना चाहते हैं, बट सारा वर्क तो आपकी मदर ही करती है. सो जस्ट लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन मेन एंड वुमेन. किसका आपको ज़्यादा है? मेन का. यस, वर्क आर पर वीक. सो यू कैन से दैट डबल बर्डन है वुमेन पे. वुमेन पे क्या है आपका? डबल बर्डन है. डबल बर्डन literally means double load. This word is commonly used to describe the women's work situation when they work inside and outside the home. डबल बर्डन हो गया वुमेन पे. वो घर में भी उतना वर्क कर रही हैं, पूरा हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, आपकी केयर कर रही हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स की केयर कर रही हैं, और साथ साथ आउटसाइड द होम भी वर्क कर रही हैं. सो इट मीन्स डबल बर्डन. So student, now let's come here our next topic, women's work and equality. As we have seen, the low value attached to women household and caregiving work is not an individual or family matter. It is a part of larger system of inequality between men and women. ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि सिर्फ फैमिली में ही हो गया आपका, वहीं आपका मेन एंड वुमेन को इनइक्वालिटी मिल रही है, बट ये पूरा एक लार्ज सिस्टम का मैटर है. इट देयरफॉर हैज़ टू बी dealt with through actions not just at the level of the individual or the family but also by the government. अब इट्स गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस वर्क को देखें. As we have done that women's household and care giving works are low valued, it shows inequality between men and women. आपको पता है ये क्या शो करता है? Inequality between men and women. Inequality is an important principle of our constitution. So आपको पता है, as we know, yes, हमें आप पता है अच्छे से, as we know now, equality is an important principle of our constitution. आपका जो है equality क्या है? एक important principle है किसका? हमारे constitution का. The constitution से, इस बारे में हमारा constitution क्या कहता है equality के बारे में? The constitution say that being male or female, either male or either female, should not become a reason for discrimination. So इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. हमें पता है इक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन. इन रियलिटी inequality between the sexes exists. The government is therefore committed to understanding the reason for this and taking पॉजिटिव स्टेप्स टू रेमेडी द सिचुएशन. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं ताकि हमारी मेन और वुमेन में इनइक्वालिटी ना हो, क्योंकि हमारा इक्वालिटी है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है. नाउ स्टूडेंट, जस्ट लुक एट गवर्नमेंट स्टेप्स फॉर इक्वालिटी. यानी कि गवर्नमेंट ने इक्वल करने के लिए, इक्वालिटी करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स किए हैं आपके? यस, द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? आंगनवाड़ी एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स बनाए हैं इन सेवरल विलेजेस इन आवर कंट्री. यस, गवर्नमेंट गिव्स रिजर्व सीट फॉर वुमेन. गवर्नमेंट ने रिजर्व सीट दी है वुमेन को. इट मीन्स, आपको पता है, द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 women employed to provide
एक्ट्रेस फैसिलिटीज़, यानी कि वुमेन को भी एक रिजर्व सीट दी गई है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैंडेटरी किया गया है कि वो पूरी उसको फैसिलिटी मिले और वो वहाँ वर्क करे और उसको अच्छे से जॉब मिले. गवर्नमेंट launched the महिला शक्ति केंद्र in 2017. गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है महिला शक्ति केंद्र करके स्कीम व्हेन इन 2017. सो क्या प्रमोट करने के लिए? इट प्रमोट स्किल डेवलपमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. सो ये जो महिला शक्ति केंद्र इन 2017 में लॉन्च हुए हैं, उसको वो क्या प्रमोट करा? स्किल डेवलपमेंट, लिटरेसी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यानी कि वुमेन को भी पूरी लिटरेसी मिले, पूरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मिले और स्किल डेवलपमेंट हो. सो स्टूडेंट, दैट्स इट. थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे अहेड.